After the frightening experience with COVID last year, the situation seemed to have returned to normalcy. The markets had opened as before, and people had resumed their work and were making up for the lost time. Around the middle of March this year, the incidence of COVID cases started rising. By the first week of April, it seemed uncontrollable. Night curfew was imposed and soon converted to lockdown. People were confined indoors. Delhi police personnel braved the fear of corona and ensured the lockdown. That was not all. As hospital beds, oxygen cylinders, medicines, ambulances, and hearse vans were scarce, Delhi police rose to the challenge. They kept the order despite the disorder of a different kind. They went beyond the call of duty and showed that they were of different material. They rushed oxygen cylinders to hospitals who, instead of calling the concerned quarters, called police for help. The hoarders and black marketeers were rounded up and the medicines seized were resent to hospitals and drug controller for use by the needy. To prevent the financial frauds, where people were being asked to deposit cash in bank accounts and wallets in the name of promised oxygen cylinders and medicine, etc., but nothing was being delivered. Teams from Cyber Unit and Crime Branch of Delhi Police fanned out across the country and arrested fraudsters from Nalanda in Bihar, Jamtara in Jharkhand, and Mewat in Haryana, etc. Their bank accounts were frozen and over 1 crore 20 lakh rupees was seized, which otherwise would have been taken away by culprits. The fraud was contained in a record time. I have no hesitation in saying that Delhi police personnel truly served the people, keeping aside the fear of themselves getting infected. The true character of Delhi police blossomed, and despite the adverse condition, Delhi police personnel were appreciated for their selflessness, courage, and for helping those in need. Jai Hind. जिन दिनों ऑक्सीजन की दिक्कत दिल्ली में महसूस होने लगी, तब ये डिसाइड किया गया कि जो ऑक्सीजन के टैंकर दिल्ली से बाहर से लाए जा रहे हैं उनको पीसीआर की गाड़ियां पायलट और एस्कॉर्ट करके लाएंगी और उनको ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा। और इस सिलसिले में हमने 60 से ज़्यादा गाड़ियां इस्तेमाल की और 150 आदमी हमारे पीसीआर केस में लगे, जिसके अंदर पानीपत, पलवल, मोदी नगर और यहाँ तक कि जामनगर की तरफ से भी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लाए गए। और व्हाट्सएप के माध्यम से और जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से उनकी पोजीशंस को लाइव ट्रैक करने के लिए हमने अपने कंट्रोल रूम में मुनासिब इंतज़ाम किया था। सभी टैंकर्स को मॉनिटर कर रहे थे कि उनकी पोजीशन इस वक्त कहाँ है और अचानक अगर कहीं वो रुक गए हैं किसी वजह से तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। और जितना जल्दी और फास्ट हो सकता था वो ऑक्सीजन के टैंकर्स को हमने यहाँ दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल्स में पहुँचाया। मेरे निरीक्षण में एक कोविड सेल की स्थापना की गई, जिसने तमाम उन पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों से राब्ता बनाए रखा जो इस बीमारी से संक्रमित हुए। इस सेल ने उनकी तमाम संभव सहायता की। स्वस्थ हुए पुलिसकर्मियों ने अपना प्लाज्मा स्वेच्छा से दान किया। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक सेल का गठन किया गया जिसका नाम जीवन रक्षक रखा। डोनेटेड प्लाज्मा को पुलिसकर्मी, उनके परिवार के सदस्य और आम जनता को उपलब्ध कराया गया। इस डोनेटेड प्लाज्मा से कई लोगों की जान बची। इसी संदर्भ में एक वेलनेस वेबिनार सीरीज़ का भी आयोजन किया गया। इस वेबिनार सीरीज़ में विशिष्ट डॉक्टरों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने इस वेबिनार सीरीज़ के ज़रिए पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों और जनता के लोगों को इस बीमारी के बारे में तमाम जानकारी दी। इस वेबिनार सीरीज़ के ज़रिए कई शंकाओं का भी निवारण हुआ। During this pandemic time, Delhi police used social media very effectively. That whatever information had to be provided by the government departments or by police, we provided them on various social media platforms, be it Twitter, Facebook, Insta, YouTube and all. We quelled any rumor mongering or any misinformation or any wrong information reaching to the general public in real time, and see above all that we could help the people, whether it was performing the last rites of their near and dear ones,
whether it was issuing of e-passes for emergency travel, whether it was related to the cyber frauds which criminal elements took advantage of the situation. So all kind of these things, we were watching it on real-time basis. We were getting these information on our Twitter handle and our other social media platforms, and we were passing it to the field formations who reacted immediately on these complaints and provided all help which was required by the members of general public, and that endeared Delhi police more to the public in these tough times. So in this manner, I think the use of social media and use of technology became a very crucial element in our fight against this pandemic. अप्रैल 2021 के आखिरी हफ्ते में दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया साइबर टीम साइबर 112 ने ऑब्ज़र्व किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी SOS कॉल्स आ रही हैं रिगार्डिंग ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एवं कुछ मेडिसिन्स जो प्रिस्क्राइब्ड हैं कोविड के इलाज के लिए। जो चीटर्स थे उन्होंने इस कोविड की दूसरी लहर को एक अपॉर्चुनिटी में अपने लिए बदला। पेशेंट्स के रिलेटिव्स या पेशेंट्स को इस दौरान ठगा गया। इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कोविड हेल्पलाइन एवं साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल 155260 को ऑगमेंट कराया तथा पब्लिक में इसको पब्लिसिटी दी कि आप अपनी कंप्लेंट्स इस पर लॉन्च कर सकते हैं। इस दौरान पाया गया कि लास्ट वीक में काफ़ी कंप्लेंट्स आई जिस पे केस दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस ने साइपैड, डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल्स और साइबर का अपने क्राइम सेल की करीब 31 टीमों का गठन किया। वह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टास्किंग करके भेजा गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने करीब 900 कंप्लेंट्स प्राप्त करी और उसमें करीब 500 FIRs दर्ज की गई और उनके बेसिस पे जो इनपुट डेली 12 आवरली इन टीम्स को दिए गए। करीब 200 से ज़्यादा जो एक्यूज़ड हैं, चीटर्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया, उनके फ़ोन सीज किए गए। वह जो फ़ोन नंबर्स वो यूज़ हो रहे थे और जो अभी पकड़े नहीं गए उनकी ब्लॉकिंग के लिए I4C जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर MHA का है उसके द्वारा DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन व बैंकिंग सिस्टम एवं वैलेट्स जो है डिफरेंट वैलेट्स हैं उनके साथ संपर्क साधा गया। इस दौरान मोबाइल फ़ोन नंबर्स को ब्लॉक कराया गया और हैंडसेट जो IMIs हैं उनको भी ब्लॉक कराया गया एवं जो बैंकिंग सिस्टम में पैसा डिजिटल चैनल्स में था उसको फ्रीज़ कराया और इस दौरान करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए जो है वो फ्रीज़ कराए गए। Allow me take you to the e-book now. नमस्कार। दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार रहा है। बड़ी खबर के साथ बता दें आपको, देश की राजधानी दिल्ली बंद हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली में लॉकडाउन लागू हो गया है। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगा, जिसमें मेट्रो और बस सेवाएं भी शामिल। बढ़ते हुए खतरे के बीच ये फैसला लिया गया, दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जगह जगह धारा 144 लगा दी गई है। COVID first wave when Delhi police became दिल की पुलिस। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। A brief interregnum when the first wave had subsided and life was returning to normalcy.
when the second wave struck us all. We rise again, दिल से. Stories to inspire.
as nature regenerates life,